رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه المسلم. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں تحریر فرمایا محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. اور اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے قلوب میں امام الانبیاء کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے ہردے میں اور ہمارے اس قلب کے اندر اللہ کے رسول کا عشق نہیں ہے تو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے مومن کا دل اس کے نبی سے پر ہو، اس کے رسول سے پر ہو، اس کے سینے میں امام الانبیاء کی محبت ہو، وہ نبی کے مشن کو اپنا مشن سمجھتا ہو، نبی کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہو، نبی کے رونے کو اپنا رونا سمجھتا ہو، نبی کے اوڑھنے کو اپنا اوڑھنا سمجھتا ہو، نبی کے بچھونے کو نبی کا اپنا بچھونا سمجھتا ہو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو، اس کو نبی کی ایک ایک ادا سے عشق ہو، اس کو نبی کی ایک ایک وضع اور قطع سے پیار ہو، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ایک سنت سے پیار ہو. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے گویا وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں نبی کے ساتھ پورے طور پر رہے گا. ہاں تو ضروری ہے بندے مومن کے لیے اس کا سینہ عشق نبوی سے پر ہو. نبی نے جو کہا ہے وہ کام کرے، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی نے جو حکم دیا ہے اس کو کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. اگر تم نبی کی باتوں کو مانتے ہو اور نبی کی منع کی ہوئی چیزوں کو جانتے ہو تب تو حقیقی معنوں میں تم مسلمان ہو. اور اگر یہ باتیں تمہارے اندر نہیں تو خوب یاد رکھو محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ضروری ہے کہ ہمارا سینہ عشق نبوی سے پر ہو. بھائی اس کی آواز بڑھا دیں، میری آواز کم ہے، آواز میرے کانوں میں ٹکرا نہیں رہی جیسے آنی چاہیے. بہترین
बेहतरीन इसका वॉल्यूम बना दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए, आवाम को भी समझ में आए। माइक का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मेरा कलेजा कम आप निकलवाए, मुझ पर रहम करें, बीमार आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, हजारों किलोमीटर का सफर करके आया हूँ। बड़ा पुररौनक जलसा है, बड़ी पुरमक्स पूरे तौर पर बज़्म सजाई हुई है, बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया साहब जैसा मुशफिक व मुरब्बी उस्ताद मुकर्रम, जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं, इलाके की नुमाइंदगी करने वाले, चाहे कस्बा गोला का प्रोग्राम हो, एग्रा का थाना एग्रा का प्रोग्राम हो, पटासपुर के इलाके में हो, हजरत मौलाना बेचारे भागे भागे चले जाते हैं। ज़ईफ़ी का आलम है, इतने मुतहर्रिक, इतने फ़आल शख्सियत, इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है। मैं तो रश किया करता हूँ, काश ये पूरा हमारे इलाके में होता, काश मैं भी थोड़ी कदर कर लेता। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं। कितनी हजरत मौलाना मोहब्बत फरमाते हैं इस फकीर से। तबीयत मेरी नासाज थी, हजरत मौलाना से मैंने कहा हजरत तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ठीक फरमा देगा। फौरन फोन किया, हाँ भाई टिकट बनवा लो, मियां सलमान आना है, मौलाना आना है। मैंने कहा हजरत आपकी बात मैं रद्द नहीं कर सकता, हालांकि खुद आपके बंगाल के तकरीबन 5 प्रोग्रामों में मैं शामिल नहीं हो सका, इतनी शदीद तबीयत खराब हो चुकी थी। 1.5 माह तक बिस्तर अलालत पर पड़ा रहा, लीवर में इंफेक्शन हो गया था। रब्बुल जलाल का करम हुआ, हजारों मदारिस में दुआएं कराई गई, हजारों आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने दुआएं की। डॉक्टर जुनैद साहब जो लीवर स्पेशलिस्ट हैं, मेरे लिए खास तौर से इंग्लैंड से आए हुए थे। कहेंगे मौलाना पता नहीं किसकी दुआएं आपके काम आ गई, वरना बगैर लीवर ट्रांसप्लांट के आपका काम न चलता। अल्लाह ने बचा दिया। आज वो दिन है, आज ये पुररौनक मजलिस है, हजरत मौलाना की दुआएं हैं, उलमाए कराम और ये हमारे भाइयों की, ये कमेटी वालों की दुआएं हैं। आज आपके सामने में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। एक तो मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे बीमार हूँ। हदीस में मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है, बीमार की भी दुआ कबूल होती है। मैं हाथ उठाता हूँ बारगाह रब्बुल आलमीन में, अल्लाह आप सबके तमाम बिगड़े कामों को बना दे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां ये भी पर्दे से सुन रही हैं, अल्लाह इनका सुनना भी मुबारक फरमाए। कितनी मेहनतें की होगी इन बेचारे भगवानपुर वालों ने, इन बेचारे डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर वालों ने, इन बंगाल वालों ने महीनों से इंतजाम करते हैं। देखो बेचारों ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया, इतनी अच्छी लाइटिंग सिस्टम, इतना अच्छा माइक, इतने अच्छे सामाइन, इतने दूर दूर से उलमा को बुला लिया। यही तो सब देख करके दिल बाग बाग होता है। यही तो इस बात की अलामत है कि हम इमाम अल-अंबिया की दीन से मोहब्बत करते हैं, हम शरीयत इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम साहिब ईमान से मोहब्बत करते हैं, हम उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं। और यही मोहब्बतें इंशाअल्लाह अज़ीज मैदान महशर में हमारे काम आएगी। अब एक और वादा कर ले, एक और नियत कर ले इंशाअल्लाह कि जब तक दुआ नहीं हो जाएगी हम बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं इंशाअल्लाह। बहुत दूर दूर से उलमाए कराम तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात उस वक्त तक नहीं जाएंगे, इस उम्मीद पर मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह आप हजरात साथ देंगे इंशाअल्लाह। कितनी देर तक साथ देंगे जी? सुबह के बाद दूसरा दिन भी आता है। एक जगह आप ही के बंगाल में था, मेरे पास पर्ची है मौलाना 2 घंटे, मैंने कहा फिर तीसरा भी शुरू हो जाता है, तो कहा 3 घंटे, मैंने कहा फिर चौथा भी शुरू हो जाता है, कहा 4 घंटे, मैंने कहा उसके बाद फजर की अजान भी हो जाएगी, कहा फजर तक, मैंने कहा फिर जोहर भी पढ़ता हूँ। आप खामोश हो गए कि बहुत बेढंग मौलवी है। जितनी देर तक बस दुआ ये करो, अल्लाह जितनी देर तक बुलवाए काम की बातें करो। अजीजों, हम सब इमाम अल-अंबिया के गुलाम। मुल्क हिंदुस्तान एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक गुजारिश मैं ये करूंगा कि चाय का माहौल अभी होती है,
चाय बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, बयान के दरमियान चाय मत पीजिएगा, इससे डिस्टर्ब होता है। ये मेरी गुजारिश है। एक मेरी आदत है, मेरे असातिज़ा ने फरमाया भी था कि बदनस्बी जहाँ हो वहाँ टोक दिया करो। इसमें जो लोग बुरा नहीं मानते बल्कि इस्लाह हो जाती है, इसकी इस्लाह हो जाती है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की महफिल है। लोग मोहब्बत से सुनना चाहते हैं, नबी की बात हो रही है, रसूल की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, किताबुल्लाह की बात हो रही है, सुन्नते रसूलुल्लाह की बात हो रही है। बताओ, क्या होटलों पर हम चाय नहीं पीते? क्या घरों में हम खाना नहीं खाते? क्या हम बाजारों में बैठ कर नहीं खाते? अगर यहाँ हम थोड़ी देर खामोशी से बैठ लेंगे तो बताओ हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ, नुकसान एक ही होगा, अल्लाह की तरफ से उतरने वाली रहमतें, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरकतें, रब्बुल जलाल की तरफ से मिलने वाली इनायतों का कुछ हिस्सा जो छींटे हम पर पड़ने वाली होगी वो चाय की चुस्कियों में बर्बाद करके रख दिया करेंगे। इसी वजह से मैं गुजारिश करूंगा, ये खालिसतन दीनी मजलिस है, इसको पार्टी ना बनाओ। ये जलसे आम है, इसको पार्टी ना बनाओ, इसको शादी की पार्टी ना बनाओ, इसको होटल की पार्टी ना बनाओ, खाने पीने की पार्टी ना बनाओ। तुम्हारी जुबान भी अल्लाह के जिक्र से तर हो, तुम्हारा दिल भी अल्लाह के जिक्र को सुकून से सुने, तभी अमल करने की रब तौफीक दिया करता है, तभी तौफीक मिला करती है। ऐसा नहीं होने वाला जुबान पे हमारे चाय की चुस्कियां चल रही है, दिल अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, नहीं हो सकता। लिखा हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जुबान से जो तुम कुछ जायका चखोगे उसका असर डायरेक्ट तुम्हारे दिल पे होगा। खुदा अंदाजा लगाएं, जो जुबान पर जायका आप चखते हैं क्या दिल उसको महसूस नहीं करता? और जितनी देर चाय की चुस्की आप लेते रहेंगे आप दिल में दूध की लज्जत नहीं पा सकते, ना माने आप एक घूंट पी करके देखेंगे। इस वजह से मेरी ये गुजारिश है कि आप हजरात जितनी देर बयान को सुने आप हजरात चाय का माहौल बिल्कुल मत बनाए, खाने पीने का माहौल न बनाए, संजीदगी के साथ सुने। हम सब इमाम अंबिया के गुलाम, हम सब रसूल पाक की मोहब्बत में आए हैं, अपने घरों की नींदों को हमने कुर्बान किया है, नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है। सख्त गर्मी के मौसम में यहाँ हम पंडाल में खचाखच बैठे हुए हैं, भरे हुए। हम इस मौके को गनीमत समझें। हकीमुल इस्लाम और इस वक्त का शेखुल इस्लाम जो वक्त का मुहद्दिस भी है, मुदब्बिर भी है, मुफक्किर भी है, मुहक्किक भी है, फकीह भी है। हाँ, दुनिया ये अरब ने जिसको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया हुआ है, दुनिया जिसको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का सबसे छोटा फर्जंद दिलबंद शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के नाम से जानती है। हजरत वाला एक दर्स में फरमाने लगे, कहने लगे, भाई आज के दौर में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की मजलिसों में आपको फकत बैठने की तौफीक दे दे, ये रब की तौफीक मिल जाना ही बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। इस नेमत की कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? खूब याद रखो, रब का कुरान में फतवा है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर जो मैं तुमको नेमतें देता हूँ उस पर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो शुक्र अगर अदा करोगे तो नतीजा ये होगा उन नेमतों को और मैं बढ़ा दूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में इसकी तफसीर करते हुए लिखा, कफर के दो माने हैं, एक तो इनकार करने के, दूसरे शुक्रिया अदा न करने के। वो अपने आपको जलसे में आने की तौफीक अता फरमा दी, इसमें चंदा देने की तौफीक अता फरमा दी, वक्त भी निकाल दिया, कोई बीमारी भी आपको नहीं आई जो आप जलसे में न आ सके, अब आकर के बैठने की भी तौफीक दे दी। लेकिन यहाँ बैठकर अगर आप उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, इधर उधर की दुनिया की बातें करेंगे, आपस में गप्पे लड़ाएंगे, इधर उधर चलते फिरेंगे, बाजारों और रोडों पर घूमेंगे, बताओ रब की इस नेमत की नाशुक्री है कि नहीं है? रब फरमाता है, फरमा इन्ना अज़ाबी वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। खबरदार, अगर तुमने इस मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, खामोशी से नहीं सुना, तो आइंदा जब जलसा होगा नतीजा ये होगा मैं तुमको ऐसी चीजों में फंसा दूंगा या ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दूंगा कि तुम्हें जलसे में आने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं हमेशा क्या करता हूँ, इन मौकों को गनीमत समझा करो। हाँ, ये रब की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इस पर शुक्र अदा किया करो।
اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب ذو الجلال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، خاص کر ملک ہندوستان کے مسلمانوں میں، خاص کر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، صوبہ یوپی کے مسلمانوں میں بے چینی۔ کتنی دعائیں ہوئی، ابھی یوپی کا الیکشن ہوا کہ انتخابات پورے ہو گئے، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی، حرم پاک میں دعائیں ہو رہی، کئی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، کئی املیوں کے بیچ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ جمعے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیجئے، اللہ انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت سونپ دیجئے۔ ہاں ہاں، ہر جگہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، مشائخ دعائیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جگہ علماء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے ولی دعائیں کر رہے ہیں، مرد دعائیں کر رہے ہیں، عورتیں دعائیں کر رہی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حالات میں تبدیلی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ ایسے سمجھ دیا ہے، ایک حدیث یاد آ رہی، حدیث قدسی ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین کے ذل القدر نبی فرمایا، اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے اور کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ، جب میں بارشیں وقت پر کروں اور حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دوں تو سمجھ لینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن جب میں بارشیں بے وقت کروں اور حکومت ظالموں کے ہاتھ میں سونپ دوں تو سمجھ لے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ مسلمانوں، آج کے حالات دیکھو، موجودہ حکومت کے رویے دیکھو اور اس حدیث پر غور کرو۔ ہاں ہاں، پتہ چلا روٹھا رب ناراض ہے، رب روٹ گیا ہے، میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسٹر مودی کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، سی ایم یوگی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم کو روٹے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب روٹ گیا ہے، جب اس رب کو مناؤ گے، میرا رب کہتا ہے اے لوگوں، میں اگر روٹتا ہوں، کوئی بندہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے تو میں مان بھی بہت جلدی جاتا ہوں۔ اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء، میرے بندے تو مجھ کو تلاش کر، تو مجھ کو منانے کی کوشش کر، میں تجھے میں بہت جلدی مان جاتا ہوں۔ فإن وجدتنی، اگر میں تجھے مل گیا، فإن وجدت كل شيء، پھر ہر چیز تیری غلام بن جائے گی۔ ہاں ہاں، کیوں؟ زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس پٹے پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تو ملکوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آجا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عزت چاہتا ہے تو آجا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہاں ہاں آجا، سارا نظام تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے بندے، تو اپنے رب سے دوستی کر لے، روٹھے رب کو منا لے، سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کی خوشامد کرتے پھر رہے ہیں، اور خاص کر آپ نے سنا ہوگا، کون ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں پولیٹکس اور راجنیتی کی بات کیا کرتا ہوں، نہ میں اس قابل پورے طور میں اس جلسے کی اور پورے طور پر یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس جلسے میں اس قسم کی پولیٹکس کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ایک سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت تمام کی تمام امت مسلمہ کو وجوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی لعین و ملعون دجال نمرود اٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن کریم کو تبدیل کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت کا پاٹ پڑھایا گیا، آتنک کی ٹریننگ دی گئی، اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ ہمارے شہر لکھنؤ کا ایک لعین و ملعون دجال و کذاب، ایک اس امت کا ابو جہل فرعون، دنیا جس کو وسیم رضوی ملعون کے نام سے جانتی ہے، جو اب تو مسلمان نہ رہا، رونا رو رہا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اسلام سے نکال دیا۔ ارے اسلام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی سلمان کی حیثیت کیا ہے؟ مفتی یحییٰ صاحب اتنا پاور کہاں رکھتے کہ کسی کو اسلام سے نکالے؟ ارے جس دن سے اس لعین نے اللہ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی، خود اللہ نے اس کو اسلام سے باہر نکال دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ
यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, काबिल कबूल नहीं है शरीयत इस्लाम को कि इसमें कोई दखल अंदाजी है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। रब ने दीन कंप्लीट कर दिया, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को मुकम्मल कर दिया। शरीयत हमारा इनकम्प्लीट नहीं है, हमारी शरीयत पूरी हो चुकी। एक एक आयत, एक एक हरफ, एक एक जबर, एक एक जेर मुकम्मल हो चुकी। ना इसमें से घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में बड़े बड़े दज्जाल आए, नमरूद आए, फिरौन आए, कोशिशें की कुरान करीम को मिटाने की। कुरान मिटा, मुसलमानों मिटा, बताइए मिटा कुरान? एक जबर कोई माई कलाल मिटा पाया, एक जेर मिटा पाया, एक तशदीद मिटा पाया? वो कुरान करीम जिसके अंदर रब्बुल जलाल ने 1,48,992 मकाम पर लफ्ज अलिफ का इस्तेमाल फरमाया है। बताओ कोई एक अलिफ मिटा सका? कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ में से कोई दज्जाल एक हुरूफ निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। असल में मामला ये था, ये दज्जाल सोचता था, ये वसीम रिजवी कमबख्त शैतान लईन मलून सोचता था हम इस तरीके के अगर बयान देंगे तो मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, दंगे होने लगेंगे, आपस में अफरा तफरी मच जाएगी और हमारा एक नाम हो जाएगा, हमारा एक नाम हो जाएगा। देखो सारे के सारे हमारे आका हमसे खुश हो जाएंगे, वो पूरे तौर पर हमको अपनी गोद में बिठाएंगे। मुसलमान तो वैसे भी हमें नहीं चाहते, क्योंकि हमने क्या शिया वक्फ बोर्ड में घुस करके जब उसका चेयरमैन साबित था, उसने कितने कितने घोटाले किए हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जायदादों को हड़प किया है, नाजायज तरीके से वक्फ की जमीनों को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इन तमाम मुकदमात से बचने के लिए इस कमबख्त ने प्रोपगंडा रचा था कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, इससे इस्लाम को धूमिल कर दिया जाए, इससे इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, इससे आरएसएस की चालों को और फरोग दे दिया जाए। हाँ वो ये सोचता ये था इससे इस्लाम बदनाम हो जाएगा, इससे इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इससे मुसलमान कमजोर हो जाएगा। लेकिन उस लईन को पता नहीं है, जाए आए इस मगरबी पश्चिम बंगाल के जलसे से कोई मेरा ऐलान उसको ये बताए, तेरी इस प्रोपगंडों से इस्लाम कमजोर होने वाला नहीं है, मुसलमान कमजोर होने वाला नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर जनाब मुफ्ती सलमान साहब, नारे तकबीर। कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कौन है इस्लाम की हक्कानियत को बदलने वाला? कौन है इस्लाम की हक्कानियत को तब्दील करने वाला? दुनिया का कोई लईन व मलऊन? और कौन खत्म करेगा कुरान को? जिस दिन कुरान खत्म हो गया कोई माई का लाल जिंदा बाकी नहीं बच पाएगा, कयामत आ जाएगी। हमारे दम कदम से तुम्हारा वजूद बाकी है इस दुनिया के अंदर। हदीस मुबारक बैहक़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में लिखा हादिल हदीस हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, उलमा से सुना करते हैं आप दावती भाइयों से, जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, रब्बुल जलाल सातों जमीनों और सातों आसमानों के वो निजाम को यूं ही चलाते रहेंगे। आसमान से बारिश बरसती रहेगी, जमीन से गल्ला उगता रहेगा, आप बच्चों की पैदाइश होती रहेगी। लेकिन जिस दिन एक भी सूरह जमीन पर रब का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा, रब फरमाता है इज़ा समाउन शक़्क़त, अल्लाह आसमान फाड़ डालेगा, वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पर टूट करके आ गिरेंगे, वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह हवा में उड़ जाएगा, वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन बोरिए की तरीके से लपेट दी जाएगी। जिस दिन अहले ईमान खत्म हो गया, जिस दिन इस्लाम खत्म हो गया, जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया, खिंजीर का गोश्त खाने वालों, सूअर की चर्बी खाने वालों, हमको दुनिया से मिटाने का ख्वाब देखने वालों, गोरी चमड़ी वालों, जिस दिन इस कान खोल करके सुन लो, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, माँ कोई माई का लाल यहूदी दुनिया में जिंदा बाकी नहीं रह पाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे दम कदम से दुनिया की तमाम कौमों
को जिंदा रहने के लिए साहिब ईमान की जरूरत पड़ती है। ईमान जिंदा है, जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सलमान साहब, उत्तर बेउदिया शांति संघ। हम सब एक नबी को मानने वाले हैं। इस्लाम में दहशत नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है। गलत एक व्याख्या दी जा रही। मदरसे को आतंक से जोड़ दिया गया, जलसों को। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे, कितने अच्छे अच्छे जलसे हो रहे। यूपी में मौलाना, यूपी में बगैर परमिशन के हम एक छोटा सा जलसा नहीं कर सकते। मदरसों के अंदर अगर हम जलसा करेंगे वहां भी हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हमें इतना हक नहीं रहा मुल्क हिंदुस्तान में? हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, आखिरकार सिर्फ हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सुबह तकरीबन 8:30 पर 2:30 बजे में वो रात में उठा हुआ था। वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से एयरपोर्ट है। बाइकार एयरपोर्ट आया, तकरीबन 7:30 बजे के करीब मेरी एंट्री हुई। सर पे मेरी पगड़ी बंधी हुई थी, सदरी मैंने पहन रखी थी। जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ मेरी पगड़ी उतरवाई गई, मेरी सिदरी उतरवाई गई, मशीन में डाली है। एक दाढ़ी का बाल चेक किया जा रहा है, सर का एक बाल चेक किया जा रहा है, मेरे शूज उतार के मशीनों में डाले जा रहे हैं। आखिर मेरे साथ है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने कोई कुर्बानी अदा नहीं दी? हाँ, अरे मेरी ना मानो, टर्म्स को देखो, अंग्रेज वर्ल्ड लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन उठा करके देखो, सफा 84 पर लिखता है। इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में अगर उलमाए कराम शरीक न होते, ये मदरसे वाले शरीक न होते, ये उलमा शरीक न होते, ये दाढ़ी वाले शरीक न होते, ये टोपी वाले शरीक न होते, ये मुल्क हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों से आजाद न होता था। टॉम्स लिखता है, हाँ, 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमा को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। टॉम्स लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर ये उलमा की लाशों को न लटकाया गया हो। टॉम्स लिखता है, हाँ, उलमा इकराम को सुअर की खाल की बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से दरिया में डाला गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है, उलमा इकराम की औरतों की इज्जतों को तार-तार किया गया था। टॉम्स लिखता है, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था। टॉम्स लिखता है, हाँ, इनके बच्चों हजारों नहीं 23,000 बच्चों को गाजर मुड़ी की तरह काट दिया गया था। टॉम्स लिखता है, मुसलमानों पर बड़े मजालिम के पहाड़ तोड़े गए थे। टॉम्स लिखता है, पाकिस्तान की लाल मस्जिद जिसमें अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक एक दिन में 400 आलिमों को फांसी दी जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेज कह रहा है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कुर्बानियों की गवाही देती है। आओ हमें गद्दार कहने वालों, आओ हमें दहशतगर्द कहने वालों, आओ हमें वफादारी का सबूत हमसे मांगने वालों, आओ मुझसे वफादारी का सबूत मांगना चाहते हो, जाओ दिल्ली के लाल किला से देखो, लाल किले से पूछो, ये मेरी वफादारी का सबूत देगा। दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछो, ये मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे के ताजमहल से पूछो, मेरी वफादारी का सबूत है। हाँ, लखनऊ का इमाम बाड़ा सिराजुद्दौला का देखो, ये मेरी वफादारी का सबूत है। मगरबी बंगाल का प्लासी का मैदान 1789 में आयन मैदान जंग में अल्लामा सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह जो शहीद किए गए थे, ये बंगाल का प्लासी का मैदान हमारी गवाही का सबूत है, हमारे वफादार होने का सबूत है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से पूछो, हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा। एक एक पत्ते से पूछो, हमारी वफादारी का सबूत मिलेगा। दरिया की एक एक रवानी से पूछो, मेरी वफादारी का सबूत मिलेगा। जाओ आज की सतलज और जमुना और ताप्ती और गंगा नदियों से के खूबसूरतों पर पानी से पूछो, हमारे बच्चों के खून से जिसको लाल किया गया था, ये तुम्हें हमारी गवाही का सबूत देंगे। हम कल भी इस मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क के साथ वफादारी करते हैं। उलमाए हक, उलमा देवबंद, हिंदुस्तानी उलमाए हक, उलमा देवबंद। हमने कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, फिर भी हमें गद्दार का नाम दिया जाता है। हमेशा मदरसे वालों ने कुर्बानियां दी, हमेशा मदरसे वालों ने आगे आकर के कुर्बानियां दी, अंग्रेजों से लोहा लिया है। हाँ, आखिर क्या बात थी? मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह को पूरे तौर पर माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है।
आखिर क्या बात थी? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अंग्रेजों से छुप छुप करके भागा करते थे। कौन है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला अंग्रेजों का फतवा, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला? शेखुल अरब बलादत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला। दूसरा फतवा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की चांदनी चौक से ऐलान किया, मुल्क हिंदुस्तान के इंसानों सुनो, आज से तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया है और आज के बाद तुम्हें अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी, उनके तन बदन में आग लग गई। मौलाना को पागल कुत्तों की तरह अंग्रेजी फोड़ने लग गई। मौलाना देवबंद से दिल्ली चले आए, 2 दिन तक छुपे रहे। तीसरा दिन आया, अपना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। हजरत बाहर निकलना चाहते थे, मौलाना फरमाने लगे हजरत बाहर मत निकलिए, अंग्रेज के इरादे ठीक नहीं है, वो आपको पकड़ के मारेगा, वो आपको फांसी देगा, वो आपकी जान ले लेगा। हजरत मौलाना रोने लगे, कहने लगे मौलाना हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा दुश्मन के डर की वजह से छुपने की इजाजत शरीयत में नहीं मिलती है, सबूत नहीं मिलता है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जालिमों के डर से गारे सौर में 3 दिन छुपे हुए थे और बिलाखिर बाहर निकल आए। मौलाना थानेसरी फरमाने लगे हजरत कुछ नरम रवैया अख्तियार करना। बहरहाल मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया, जज के सामने मौलाना को बिठाया गया। और हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना क्या तुमने फतवा दिया है कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ फतवा दिया था, देता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा यही फतवा देता रहूंगा। क्या फरमाया? देता रहूंगा। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना जानते हो इसकी सजा क्या है? नौजवानों सुनो, मैं तुम्हारे बड़ों की तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी हैसियत इस मुल्क में क्या। मौलाना फरमाने लगे फतवा दिया था, देता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह देता रहूंगा। तो अंग्रेज जज कहने लगा इसकी सजा मौत है। मौलाना ने फरमाया मेरे हाथ खोलो। मौलाना के हाथ बंधे हुए थे तो जज कहने लगा इसके हाथ मत खोलना, मौलवी बड़ा चालाक नजर आता है, भाग जाएगा। फरमाया नहीं। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया सुन आए जालिम कुत्ते सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन रखा था और तारीख गवाह है हुसैन गर्दन कटा तो देता है लेकिन मैदान छोड़कर भागा नहीं करता। अल्लाह, ये था हुसैन भागा नहीं करता, बिलाखिर हाथ छोड़ दिए गए। बैग से कफन का कपड़ा निकाला और अंग्रेज जिसकी मेज पर पटक दिया। कहा मौलाना ये क्या लाया हो? कहा अगर तू इसकी सजा मौत तजवीज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। अल्लाह अकबर कहिए, मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। तो अंग्रेज हैरान, कहने का मौलाना तुम्हें कफन यहाँ भी मिल जाता, देवबंद से क्यों लाए? क्या हसीन सा जुमला फरमाया हुसैन अहमद मदनी। तारीख शहीद आजम में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। मौलाना फरमाने लगे जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियां देता रहा, जैसे कह रहे हैं कि जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियां देता रहा, जिस अंग्रेज के खिलाफ सारी जिंदगी में फतवे देता रहा, जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में मुखालिफत करता रहा, आखिरी वक्त हो, अल्लाह की अदालत हो, अंग्रेज अदालत हो, मुझको फांसी दी जाए, अल्लाह की अदालत में इस अंग्रेज की फैक्ट्री में बने हुए कफन को पहनकर अल्लाह की अदालत में जाते हुए शर्म आता है। अल्लाह, कौन है हुसैन मदनी? अपनी तारीख पढ़ो, तुमने तारीख पढ़ना छोड़ दिया है। अपना इतिहास पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा मुल्क हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या किरदार है। नौजवानों, तुम पढ़ाई के मैदान में आगे हो, तुम इल्म के मैदान में आगे आओ। हाँ, हमारा नौजवान तालीमी मैदान में बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। मैं तो अब इस वक्त हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि मदरसों को भी कॉलेज बनाओ, मदरसों के भी अंदर इंग्लिश को चलाओ, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, मदरसों के अंदर पूरे तौर पर असली तालीम का इंतजाम करो, दुनियावी तालीम का इंतजाम करो। अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को बीए कराओ, सीए कराओ, एमसीए कराओ, एलएलबी कराओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, उन्हें दुनिया के तमाम डिग्री
डिग्रियों ने हासिल करवा दो। हाँ हाँ, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, जो मेरे नबी ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ हाँ, आम तौर से उलमाए कराम इसका यही माना बयान करते हैं, इससे मुराद दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, फिक़ह का इल्म है। लेकिन मैं एक एक इसकी अलग तशरीह पेश किया करता हूँ, ये मेरा जाती नजरिया है। उलमाए कराम इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं, शायद इसका रद्द भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, ये जो बात मेरे नबी ने कही थी ये सहाबा के दौर की थी, आज के दौर में इस हदीस का मतलब ये है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब ये है कि मुसलमान के ऊपर तमाम उन उलूम का हासिल करना फर्ज है जिससे बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों को हराया। ये मेरा जाती नजरिया है, इसे इत्तफाक भी हो सकता है और इसको रद्द भी किया जा सकता है। मेरा जाती नजरिया क्या है इस हदीस के बारे में कि आज के दौर में इस हदीस का मतलब यह है कि वक्त की तमाम बातिल ताकतों को जिन उलूम से हराया जा सके उन तमाम उलूम का उम्मत मुस्लिमा पर हासिल करना फर्ज है। अगर आज आपको एक आलिम की जरूरत है तो एक डॉक्टर की भी है कि नहीं? अगर आज आपको एक मुफ्ती की जरूरत है तो एक वकील बैरिस्टर की भी जरूरत है। अगर आज आपको एक हाफिज की जरूरत है तो आज आपको एक पूरे तौर पर IAS और IPS की जरूरत है। आप अपनी कौम के मुस्तकबिल को बर्बाद मत कीजिए। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है, हज़रत मौलाना मदरसे हैं, बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस थाना में 4 मदरसा, अल्लाहु अकबर, 4 मदारिस आपके इलाके में। अल्लाह ताला उनको खूब तरक्कियात से नवाज दे। आप बताएं, 4 मदरसे, इन मदरसों में नन्हे मुन्ने पढ़ने वाले बच्चे जो अल्लाह का कुरान अपने सीनों में महफूज करते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, वो बच्चा 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर लेता हो, वो अल्लाह का प्यारा बच्चा, वो अल्लाह का मोमिन बंदा, वो अल्लाह की मोमिन बंदी जो अपने सीने में कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ को महफूज कर ले, वो बच्चा आपके गांव का, आपके इलाके का, आपके भगवानपुर का, आपके बंगाल का, आपके थाने का, वो बच्चा जो पूरे तौर पर कुरान करीम के 8,804 पेश को अपने सीने में जज्ब कर ले, तो 86,786 जो कुरान करीम के अंदर 86,700 कलिमात हैं, एक रवायत के मुताबिक 400 कलिमात हैं, उनके पूरे तौर पर अपने सीने में जज्ब कर ले, वो बच्चा जो कुरान करीम के 38,582 सफर को अपने सीनों में रकम कर ले और एक एक हुरूफ को अपने सीने में महफूज कर ले, क्या उस बच्चे के लिए दुनिया का कोई इम्तिहान पास करना मुश्किल है? अब बताएं, आप अपने बच्चों को कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं? नहीं, जिसके सीने में अल्लाह के कुरान की दौलत महफूज हो जाए, बताओ इस दौलत से बड़ी कौन सी दौलत है? जो बच्चा अल्लाह के कुरान को पूरा एक बैठक में सुना दे, तरावी की 20 रकतों में 2 पारे सुना दे, बताओ उस बच्चे के लिए IAS का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? IPS का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कमी कहाँ हो रही? कमी हमारे अपने में हो रही है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो। मैं तमाम इलाके के जिम्मेदारों से कहता हूँ, जितने उलमाए कराम बैठे इनसे भी कहता हूँ, जितने सामाई निजाम बैठे इनसे भी कहता हूँ, आप अपने उलमा के हाथों को मजबूत करो, आप अपने मदरसों को मजबूत करो। आपने इन उलमा को इतना मजबूर आखिर क्यों बना दिया है? आखिरकार आपके मदरसों में पूरे तौर पर इंग्लिश की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल सकते हैं तो आपके मदरसे में जो आपका बच्चा दूसरे के इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ रहा है, आपके मदरसे में अलग से पीरियड 1 घंटा क्यों नहीं है जो आपका बच्चा अल्लाह का कुरान भी पढ़े, या इंग्लिश भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़े, मैथमेटिक्स भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, दुनिया के तमाम उलूम पढ़े? क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कितनी हम कोशिश करते हैं, आखिरकार हम इन उलमाए कराम को इतना मजबूर क्यों बना रहे हैं? आखिरकार हमारे मदरसों का ये पूरे तौर पर सीखेंगे और इसकी तरक्की इंशाअल्लाह आगे चल करके आप देखेंगे। कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, अगर करने पर आ जाए। अल्लाह के लिए इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए। या इमाम अंबिया कराम के वारिस हैं,
इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, इन्हें मजबूर मत बनाइए, इन्हें मजबूत कीजिए। ये आपके खादिम नहीं है, ये दीन के खादिम है। माशाल्लाह अब मजमा नजर आ रहा है। ये दीन के खादिम है, ये आपके खादिम नहीं है। आप इनकी खबरगिरी कीजिए। आप पूरे तौर पर इस बात का लिहाज रखिए कि उलमा इकराम को किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो उनको हमारे सामने हाथ ना फैलाना करें। कितनी मेहनत करें हकमरा मुफ्ती यहया साहब, कितनी मेहनत कर रहे हैं इलाके के जिम्मेदार हजरात, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे जानते हैं ये कैसे अपना मदरसा चलाते हैं। पूरे तौर पर आपको खूब इससे वाकफियत होनी चाहिए। जो इनकी मदरसे की जरूरतें हैं, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों की जरूरतें हैं, इनकी खूब आप फिक्र किया कीजिए। अल्लाह इसमें आपको खूब नवाजेगा, अल्लाह खूब देगा। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, मैं अपनी बच्चियों से भी कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र करें। आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते। ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत दीन ये बाकी, जो दाढ़ियां और जो टोपियां, ये जो कुर्ते और पैजामे जो नजर आ रहे हैं, ये मदारिस और मसाजिद और खानकाह और तबलीगी जमात की मेहनतों का नतीजा है जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, वरना कितना दीन सलामत बचा है हम सब जानते हैं। अपने बच्चों की तरबियत की खास फिक्र करो। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, आपने नाम सुना होगा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के एक वली गुजरी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत के वालिद का इंतकाल हो गया, बायजीद बस्तामी के। तो जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले इन्होंने अपनी अहलिया से यानी बायजीद की माँ से कहा था, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो तुम इसे अल्लाह का वली बनाना। क्या बनाना? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है बंगाल वालों? किसके किसके समझ में नहीं आ रही हाथ उठाओ जरा। अच्छा, समझ में आ रही है, समझ में सबके आ रही है। अच्छा, पीछे तक हाथ उठाओ, देखें समझ में आ रही है। पीछे वालों को भी समझ में आ रही है, पीछे वालों को भी समझ में, माशाल्लाह 11:30 बजे रात में भी समझ में आ रही है। अल्लाह आपको सबको कबूल फरमाए। बड़े समझदार लोग हैं। मुफ्ती यहया साहब, जब मैं चलूं 2-4 पीस दे देना इनमें के, पता नहीं इतने समझदार मिले कि ना मिले। अल्लाह आप सबकी समझदारी को और मजबूत फरमा दे, आमीन कह दीजिए। आमीन। तो आप क्या कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो अल्लाह का वली बनाना। वालिद का इंतकाल हो गया, बायजीद छोटे से हैं 4-5 साल के, बहुत गौर से सुनना। तो अम्मा को फिक्र हुई कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, अब इसकी तरबियत कैसे की जाए। तो इन्होंने मालूम किया कि भाई कौन है जो मेरे बच्चे को अच्छी सी तरबियत दे सकता है। पता चला एक मदरसा है, वहां पर एक मस्जिद है, वहां के एक इमाम साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। बूढ़ी माँ अपने इस बच्चे को लेकर के हजरत के पास ले आई। कहेंगे हजरत जी ये मेरा यतीम नजराना है, यतीम लख्ते जिगर है, हजरत जी इसे कबूल फरमा लीजिए और इसको अपनी तरबियत में रख दीजिए, इसे अल्लाह का वली बना दीजिए। और एक और फरमाइश कर दी कि जब तक ये मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए उस वक्त तक आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना। तो हजरत को रश्क आया, भाई इसकी आवाज और नहीं बढ़ सकती है, थोड़ा अभी कानों में समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी आवाज मैंने गुजारिश की थी कि बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ अब कुछ ठीक है माशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था तो क्या फरमाया कि हजरत जब तक एक गुजारिश क्या की कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। जब अम्मा ने ये ख्वाहिश जाहिर की तो बायजीद जो थे उन्होंने सुना नहीं, उस्ताद जी को रश्क आया। हाँ आप ठीक माशाल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे हजरत जी, उस्ताद जी कहने लगे अम्मा आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझको भी आप पर रश्क आ रहा है। आप दुआ करना कि मैं आपकी इस ख्वाहिश के मुताबिक अमल कर सकूं। जब वो अम्मा चलने लगी तो चलते चलते कहा हजरत जी एक दुआ भी मेरे लिए कर दीजिए। कहा वो दुआ क्या है? कहा वो दुआ ये है कि पता नहीं मैं बूढ़ी हूँ, बीमार भी रहती हूँ, शौहर के इंतकाल के बाद अजीब सी कैफियत हो गई है, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। हजरत एक दुआ ये कर दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए उस वक्त तक अल्लाह मुझे अपने पास ना बुलाए। अल्लाह मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहती हूँ। हजरत ने दुआ फरमाई, खूब रोए, माँ चली आई। अब ये बच्चा कितने साल का है? कितने साल का है भाई? 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है। हजरत की तरबियत में रहने लगा।
1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, जब 3 साल हो गए तो 3 साल के बाद ये बच्चा आया, कहने लगा हजरत जी 3 साल हो गए, मैंने आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगी, कभी जिद नहीं की, इन 3 साल में मुझे माँ की बहुत याद आई है, लेकिन कभी मैंने जिद नहीं की। हजरत जी बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो चुके हैं, हजरत जी 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, अम्मा का चेहरा देखकर वापस चला आऊंगा। अब हजरत जी परेशान, अगर छुट्टी देता हूं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूं तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ वादा है, बचाया तो जाए तो किसे बचाया जाए, तोड़ा जाए तो किसे तोड़ा जाए। हजरत जी परेशान। थोड़ी देर के बाद उनके दिल में एक बात आई, उन्होंने कहा बेटे तुम्हें छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। हजरत जी वो शर्त क्या है? कहा वो शर्त ये है कि पहले तुम मगरिब की नमाज से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले मुझे इतना सबक हिफ्ज याद करके सुना दो। अगर सबक याद करके सुना दिया तो छुट्टी, और अगर तुलू गुरूब आफ्ताब हो गया, सूरज छुप गया, तो अगले 3 साल तक तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। कितने सफ़े थे? 16 या 17, मुझे तो इतने याद नहीं, मैंने किताब में पढ़ रखा है, लेकिन थे इतने। बहरहाल अब जब वो बच्चा गया, 5 साल का बच्चा, हिफ्ज याद करना वो भी 15-16 सफ़े, कोई आसान मामूली बात है। एक आयत तो याद नहीं होती जल्दी, एक लफ्ज तो जल्दी याद नहीं होता कुरान करीम का, और वो 16-17 सफ़े। वो बच्चा आया, वजू किया, कुरान खोल के देखा, रोने लग गया। दिल में आया शायद उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं अपनी अम्मा से मुलाकात करूं। दिल में आया जाऊं अम्मा के पास, जाऊं खुश उस्ताद के पास जाऊं, कुछ सबक कम कराऊं, लेकिन दिल में आया नहीं, उस्ताद की बेदबी हो जाएगी, उस्ताद जी पूरे तौर पर नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं कहा, वापस चलाया मस्जिद में, 2 रकत नमाज पढ़ी, अपने नन्हे नन्हे हाथों को ऊपर उठाया, आंखों में आंसू भर के लाए, कहा अल्लाह तू मालिके कायनात है, खालिके कायनात है, मालिके अर्ज़ो समावात है, रब्बुस समावाति वल अर्द है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी माँ कहा करती थी तू सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर तू कादिर है, जो चाहे कर सकता है। अल्लाह बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए 3 साल हो गए, अम्मा का दीदार करने को दिल करता है। अल्लाह अल्लाह उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया है, मुझे नन्हे से जान की बस की बात नहीं है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अम्मा कहा करती थी कि तू अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे याद हो सकता है। अय अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली, और बच्चा मगरिब से पहले आ गया उस्ताद के पास। हजरत जी सबक याद हो गया है, सबक सुन लीजिए। हजरत जी परेशान, सोचा 1 सफ़ा याद हुआ होगा, 2 सफ़े याद हुए होंगे। अब जब सुनना शुरू किया, सारे के सारे सुना दिए, और बगैर जबर जेर पेश की गलती के सब सुना दिए। उस्ताद जी बड़ा परेशान, अब क्या करें, अब तो छुट्टी देनी ही थी, अब छुट्टी दे दी। ये बच्चा 3 साल के बाद शाम रात का वक्त हो चुका है, अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया हुआ है। दरवाजा खटखटाया, अब्बा अम्मा मैं आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, दोबारा फिर खटखटाया, अम्मा खोलो दरवाजा, आपका बायजीद हूँ। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ हाँ हमारी माएँ होती, 3 साल के बाद लाल आया है, 3 साल के बाद बेटा आया है, 3 साल के बाद मेरे चांद का टुकड़ा आया है। अम्मा आती, दरवाजा खोलती, सीने से लगाती, चूमती चाटती, प्यार करती, लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से रोने लगी और कहने लगी तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा उस वक्त मेरे बायजीद के उस्ताद उसे छुट्टी नहीं देंगे। और हमारे बायजीद के उस्ताद मैंने सुना है झूठ नहीं बोला करते, वादा नहीं तोड़ा करते। जब बच्चे ने ये बात सुनी, खड़ा रोता रहा, आंखें पोंछी, दिल में आया अम्मा मुलाकात करना नहीं चाहती, वापस हो लिया। आधी रात का वक्त हुआ, उस्ताद जी के कमरे में वापस मदरसे में तशरीफ लाया। उस्ताद जी ने देखा अरे बायजीद वापस आ गया। फरमाया
हाँ हजरत जी क्या बात है, एक रात माँ के पास रुक लेता, बड़ी मोहब्बत से तू गया हुआ था, बड़ी मिन्नतें करके खुशामतें करते, बड़ी मेहनतें करके तूने छुट्टी हासिल की थी, एक रात रुक लेता अपनी माँ के पास। वो बाबा यजीद कहने लगा हजरत जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा बेटा कहीं तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो? बायजीद यूं सर झुकाए हुआ था, यूं सर उठाया तो क्या देखा उस्ताद जी ने, आंखें बह रही हैं, सारे रुखसार गाल लाल हैं, आंसुओं की लड़ी बह रही है, खूब रोया है बायजीद। हाँ फरमाया हजरत जी आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अब्बा के फैसले पर भी और अल्लाह के अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। फिर उस्ताद जी के करीब आया, कहा हजरत जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे भी करें। हाँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करने लगूंगा, लेकिन हजरत जी जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा। हाय हाय हाय, जब माँ ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे भी यूं ही हुआ करते हैं। फरमाया मैं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, चाहे जितना मैं रोऊं, जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं। हजरत जी रोने लग गए, सर पर हाथ रखा, बेटे को तरबियत में ले लिया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 17 साल गुजर गए। कितने साल? अरे बोलो कितने साल गुजर गए? 17 साल गुजर गए। 17 साल जब हो गए, उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में आका मदनी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है। मेरे नबी फरमाते हैं आए बायजीद के उस्ताद उठो, बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, उसकी तरबियत पूरी हो चुकी, अल्लाह ने उसकी माओ के सदक़े तुफैल में उसको वली कामिल बना दिया है और उसकी गोदी में वापस कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस्ताद जी उठे, बायजीद के कमरे में गए तो क्या देखा, वो 22 साल नौजवान तहज्जुद के वक्त रो रहा है, आंखें भिगो रहा है और दुआ मांग रहा है और कह रहा है आए मेरे करीम अल्लाह, आए गफूर रहीम अल्लाह। हाँ 17 साल हो गए, बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह बहुत याद आती है अम्मी जान की, पता नहीं बुढ़ापे में उसका क्या हालात हो, अल्लाह जो दिल करता है बूढ़ी माँ का चेहरा देख लूं, अल्लाह कभी तुझसे गिला नहीं किया, लेकिन आज तुझसे दुआ करता हूँ कोई ऐसा असबाब पैदा फरमा दे कि बूढ़ी माँ के चेहरे का दीदार हो जाए। पीछे से बायजीद के उस्ताद आए, कंधों को पकड़कर उठाया और कहा बायजीद उठो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब जाओ तुम अपनी अम्मा के पास जा सकते हो। बायजीद भागा गया, उस दिन भी गया था, रात का अंधेरा था, आज भी गया है, रात का अंधेरा है। उस दिन गया था दरवाजे बंद थे, आज दरवाजे बंद नहीं है बल्कि आज दरवाजे खुले हुए हैं। अब बूढ़ी माँ बाहें फैलाए हुए इस्तकबाल में खड़ी हुई है। बायजीद को जैसे बूढ़ी माँ ने देखा, अपने सर से यूं पूरे तौर पर अपनी बूढ़ी आंखों से देखा, कहा मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया, मेरा बायजीद आ गया। अरे 17 साल के बाद मेरा लाल आया है। अरे मेरे बेटे अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि मैं तेरे बेटे को मैं वली कामिल बनाकर तेरी झोली में वापस कर रहा हूँ। आए मेरे बेटे, आए मेरे लाल, तू 17 साल तक अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को देख नहीं पाया, तू 17 साल तक अपनी माँ के ममता से महरूम रहा है। आए मेरे बेटे, तू 17 साल तक मुझसे दूर रहा है। आए मेरे बेटे, आज मैं तुझे अपने हाथों से रोटियां खिलाऊंगी, अपने हाथों से चाय बनाऊंगी, आज अपने हाथों से अपने लाल को खिलाऊंगी। बेटा
बाजार चला जा, घर में सामान नहीं है। मौरिखीन ने लिखा सवाने हयात में है, सुबह का वक्त था, ताखीर आने में हो गई। बायजीद जब सामान लेके लौटा है, देखा उसके दरवाजे पर लोगों का मजमा है। किसी पूछने वाले से पूछा मजमा कैसा है, बताने वाले ने बताया बायजीद 17 साल से तेरा इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। अल्लाहु अकबर। सोचो मुसलमानों, उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी, उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी जिसने 17 साल के बाद चंद लम्हों के लिए अपनी माँ का दीदार किया हो। हाँ, ये माएं बड़ी कीमती सरमाया हुआ करती हैं। नौजवानों, इन माओं की कदर करो। मेरी माँ अभी तकरीबन 1 माह कबल सख्त बीमार हो गई, बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई। मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई। अब अल्लाह का फजल है, बेइंतहा एहसान है, शुक्र है कि मेरी माँ पैरों पर खड़ी हो गई है, नमाज भी पढ़ रही है पूरे तौर पर खड़ी होकर के। अल्लाह ने मेरी वालदा को सेहत अता फरमा दी। 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन लेकिन मेरी वालदा की तहज्जुद नहीं छोटा करती। अभी जब मैं आ रहा था, सुबह का वक्त, तहज्जुद का वक्त था, मेरी अम्मी ने सर पर हाथ रखा, ऐसा लगता था सारी कायनात की खुशियां मेरी माँ ने मेरी झोली में डाल दी हो। और शायद मुझे मालूम हो गया था कि बंगाल वालों की मोहब्बतें मेरे हिस्से में आ जाएंगी, क्यों माँ की दुआएं मुझे मिल गई हैं। नौजवानों, घरों से अपने काम पे निकला करो, बिजनेस पे निकला करो, दुकान पे निकला करो, सफर को निकला करो, अपनी माँ की दुआएं लेकर के निकला करो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुआएं दे दी, दुनिया के तमाम हादसात से तुम महफूज हो जाओगे। हाँ, अल्लाह माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं करता, माँ बाप की बद्दुआओं को भी रद्द नहीं करता। नौजवानों, माओ की कदर करो, माओ की खबरगिरी करो, माओ के साथ बड़ा जलीलाना पूरे तौर पर तर्ज अख्तियार किया जाता है। हमारे नौजवानों को माओ की इज्जत नहीं है, उनका एहतराम नहीं है। बूढ़ी माँ सिसकती पड़ी रहती है, हमें उसकी फिक्र नहीं रहती। दुनिया में बहुत सी नेमतें अल्लाह ने उतारी है। जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, सैयारे अल्लाह की नेमत है, दरख्त अल्लाह की नेमत है, जमादात अल्लाह की नेमत है, नबातात अल्लाह की नेमत है, सारी कायनात अल्लाह की नेमत है। ये जुबान अल्लाह की नेमत है, दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये बाल और खाल अल्लाह की नेमत है, हाथ और पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंख और कान अल्लाह की नेमत है। लेकिन मैं सलमान का ईमान यह है, इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है। हाँ, नौजवानों, इन माओं की अगर तुमने कदर नहीं की, इन माओं की कदर नहीं की, खूब याद रखो, अगर ये माएँ तुम्हारे हाथ से निकल गई, जिस दिन अम्मा का जनाजा उठ गया, तुम रोते फिरोगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम अपनी माँ का प्यार नहीं पा पाओगे। घर में आओगे, तुम्हें अब्बू कहने वाले बेटे तो मिल जाएंगे, चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामा कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, तुमको दोस्त तो मिल जाएंगे, बेटियां तो मिल जाएंगी। लेकिन माँ अगर चली गई तो माँ जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करती। बाप चला गया तो जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करता। हाँ, अपनी माँ की कदर करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ को राजी करना, नौजवानों, यही माँ है जिसने हमारी नौकरानी बनकर खिदमत की है। पता देखो तो सही, यही माँ है जिसने बचपन में हमें 9 महीने पेट में पाला। बच्चा माँ के पेट में होता है, अब माँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया, तुझे ये चीज पसंद है लेकिन नहीं खा सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा। हमारी माँ ने वो चीज खाना बंद कर दी, बच्चे डॉक्टर ने मना किया ये चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, हमारी माँ ने अय्याम हमल में वो चीजें नहीं खाई। हाँ, सारी रात बेचैनी में गुजार दिया करती है। दर्द इतनी शदीद माँ को होती है जब पेट के
अंदर बच्चा होता है, कुरान कहता है वहनन अला वहन्यू, वहनन अला वहन्यू, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। कोई माई का लाल मर्द है ऐसा जो 2-4 किलो का पत्थर बांध कर 9 महीने घूम करके दिखाए? ये हमारी माँ है जो 2-2.5 किलो का बच्चा लिए महीनों फिरा करती है, शादियों में भी जा रही है, करवटें बदल कर सारी रात गुजार रही है। तुम तो पड़े सो जाते हो, माएँ बेचारी बेचैन पड़ी रहती है, उनके दर्द होती है, मेडिसिन नहीं लेती, कहीं मेरे बच्चे पर असर न हो जाए। इस करवट लेटती हैं, कभी इस करवट लेटती हैं, कभी आंगन में टहलती हैं। तुम तो आधी रात को पड़े सोए रहते हो, तुम्हारी माएँ बेचैनी की हालत में गुजार दिया करती है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने फरमाया इबादत मेरी करनी है, इताअत वालिदैन की करनी है। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ ना करो। फिर देखो 9 महीने पेट में रखा, फिर जब पैदाइश का वक्त आया, ये तो जिंदगी और मौत की बारी होती है। कितनी शदीद सदमा अज़ीम बर्दाश्त करके मेरी माँ हमें जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई। लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र की है, हमारी फिक्र की है, अपने आप की फिक्र की है। जैसे अपने बच्चे को चेहरे को देखा है, बच्चा गंदगी में लथपथ है, लेकिन वो पैदा करने वाली माँ के दिल में रब ने करोड़ों दर्जे क्या मोहब्बत डाल दी। उसने यूं गंदगी समेत अपने बच्चे को छातियों से लगा लिया। हाय हाय हाय, हम अपनी माँ की हक को कैसे अदा कर सकते हैं? वो हमारे चेहरे को देखती है, अपने दुख भूल रही है, हमारी मुस्कुराहट देखती है, अपने दर्द भूल रही है। अब वो अपना दर्द जिदा भूल चुकी है, अब वो अपनी दर्द भूल चुकी है, सारी तकलीफें भूल चुकी है। अब बच्चे की फिक्र में लग गई, हाँ हाँ, अब बच्चे की उंगली पकड़ने लग गई, छातियों से लगाए फिरती है अपनी। अब जब तक बच्चा माँ के पेट में रहा, उस वक्त तक भी वो बेचैन रही। इधर बार बार रात होती है, मासूम सा 2 दिन का बच्चा है, रात में उठ करके माँ बार बार अपने बच्चे को निहारती है, कहीं मेरा बच्चा जाग तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। जरा सा बच्चा रोता है, माँ की नींदें हराम हो जाया करती है, जरा सा बच्चे को बुखार आता है, बाप की नींदें हराम हो जाया करती है, बीमार ये होता है, नींदें उनकी खराब हो जाया करती है। सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अम्मा गीले में आकर के लेट गई, अपने लाल को उठाकर सीने से लगा लिया ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। फिर इसी माँ ने बचपन में हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें दौड़ना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हमें दुनिया की तमाम हादसात से वाकिफ कराया, दुनिया की तमीज़ें सिखाई। हाँ हाँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ईद का मौका आता है, हमारे घरों में गरीब लोग होते थे, हमारी अम्मा कहती थी हमारे कपड़े मत बनवाना, हमारे बेटे के कपड़े ला देना ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। हमारे अब्बा कहते थे हम अपने लिए जूते नहीं लाएंगे, अपने भैया के जूते ले आएंगे ताकि हमारे भैया की ईद हो जाए। हाय हाय, आज वही माँ वही बाप जब बूढ़े हो गए, बेटा वही जवान हो गया, तो वही माँ बाप की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। शर्म नहीं आती उस नौजवान नाफरमान बेटे को जो अपनी माँ को गालियां देता है, अपनी माँ को धक्के देता है। नहीं बख्शवा पाएंगी इबादतें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी तमाम की तमाम इबादतें। अगर शरीयत ने अगर लगाई है, अगर माँ बाप नाराज है, सर्व तीर्थ वही माता, सर्व देव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात, सर्व इतने पूजे। तमाम तीर्थों से बढ़कर तेरे पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। हाँ हाँ, माँ पड़ी सिसक रही है घर में, दवाई के पैसे बेटे के पास, कम वक्त के पास नहीं है। बेटा वृंदावन जा रहा है, मथुरा जा रहा है,
काशी जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, मक्का मदीना में जा रहा है, सोच रहा है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह मान जाएगा। फरमा नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात सर्वजनेन पूजेत, तो अपने माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम के तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। हाँ हाँ, अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिस दिन ये माँ बाप चले गए रोते फिरोगे। और एक मेरी बात नोट करके लेके जाना, अगर आज तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो खूब याद रखना, कल तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। करोगे इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत? अब एक नारा तो बनता ही था जबरदस्त, नारा तकबीर। मुफ्ती सलमान साहब, थोड़ा सा मेरे फेफड़ों पर रहम कर दिया करो नारे लगा कर। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। माँ बाप की खिदमत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मूसा कलीमुल्लाह नाम जानते हैं आप? कितने लोग नाम जानते हैं? कितने लोग नाम जानते हैं? माशाल्लाह सारे जानते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम कहते हैं बातें करने वालों के। कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा रब्बे दुल जलाल से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अल्लाह तो जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, तेरा साथी एक गोश्त बेचने वाले को बनाऊंगा। अल्लाह, किसे बनाऊंगा? गोश्त बेचने वाले को, कसाई को। हमारे यहाँ यूपी में कसाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को, जो गोश्त काट के बेचते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी वही। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आगाह फरमा दिया। एक कसाई तेरा साथी होगा। मुसलमान का अल्लाह मियां, हमारा साथी और कसाई कोई और आपको मिला ही नहीं। तो फरमाया, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। कहा अच्छा, उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, दुकान कहाँ है, करता क्या है, अल्लाह उसका घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और उसके ऐसे आमाल देखना चाहता हूँ, इसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, उसका नाम ये है, फला जगह उसकी दुकान है, उसका रंग ऐसा है, कद काठी ऐसी है। मूसा कलीमुल्लाह गए तो जाकर के देखा, एक नौजवान बैठा हुआ है और बैठ करके गोश्त के टुकड़े काट रहा है, काट करके पॉलिथीन में पैक कर रहा है, पैक करके बेच रहा है। कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो शाम तक वो गोश्त बेचता रहा। जब शाम को चलने लग गया, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, जब शाम को चलने लग गया तो एक गोश्त की थैली अपने थैले में डाल ली और घर की तरफ चला। पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे, पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे। कहा भाई, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, ये थोड़ा ही बताया कि मैं वक्त का नबी मूसा हूँ। वो तो मुसाफिर ही समझ रहा था नौजवान ना, कि ये मुसाफिर है। कहने लगे, भाई मैं मुसाफिर हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो एक रात मैं आपके साथ घर में रुकना चाहता हूँ, इजाजत दे दीजिए। मूसा कलीमुल्लाह सोचते थे जाकर के इसके अमल देखूं, कौन सा ये अमल करता है कि अल्लाह इसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। जो दुकान पर तो कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया, घर में जाने का यह बहाना बनाया और उस भाई ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ घर तशरीफ लाए। देखा उसके घर में, इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए। अंदर बीवी भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, सारे मौजूद हैं। गया, घर वालों को सलाम किया। सलाम करने के बाद सीधा एक कोठरी में, एक दूसरे रूम में, कमरे में चलाया। देखा वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई, लेटी हुई थी। गया, अम्मी जान को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान को सलाम किया, अम्मी को सलाम किया, उसकी पेशानी को, माथे को चूम करके पूरे तौर पर खैरियत मालूम की। फिर सीधा किचन में आ गया, रसोई घर में आ गया, बावर्ची खाने में आ गया, खाना पकाने के लिए आ गया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुलने लग गया। बीवी आई और आकर के कहने लगी, लाओ मैं अपने आप से धुलती हूँ ना, मैं अपने आप से पकाती हूँ ना। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ लेटी हुई है, बूढ़ी माँ, इसने बचपन में मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने
نے مجھے بہت دنوں تک کھلایا ہے، کیا ایک دن میں اسے سالن بنا کر نہیں کھلا سکتا؟ کیا ایک دن میں اسے روٹی بنا کر نہیں کھلا سکتا؟ نہیں، آج میرا دل کرتا ہے میں اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سالن کھلاؤں۔ بیوی کی مدد نہیں لی، بیٹے کی مدد نہیں لی، بیٹی کی مدد نہیں لی، خود اپنے ہاتھوں سے سالن پکایا، اس کے بعد روٹی بنائی، اس کے بعد چاول بنائے، پھر اس کو ایک تھال میں سجایا، سجانے کے بعد اس کو لے کر کے اماں کے کمرے میں آیا، اور اپنی گود کو، اپنی سینے کو کرسی بنا لیا، ٹیک لگا کر کے اپنی ماں کو بٹھایا اور باریک باریک ٹکڑے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے منہ میں یوں آگے سے ڈالتا رہا۔ اماں بیچاری بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی۔ بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے، بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کہنے لگی بیٹا اب بس کر، بیٹا اب بس کر۔ یہ کہنے لگا نہیں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا آپ مجھے لقمے کھلایا کرتی تھی، میں منع کرتا تھا، آپ زبردستی کہتی تھی بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے، بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اماں جان آج میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اتنی محبت سے جب بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ کھانے کے بعد جب اس کو اماں نے کہا بیٹا اب بس کر، اماں کو لٹا دیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، اس کی سیوا کرنے لگ گیا، اس کے منہ کو صاف کیا، سر دبایا، پیر دبایا۔ اماں کہنے لگی بیٹا سارا دن تو دکان پر کام کرتا رہا ہے، سارا دن تو اپنی تجارت کرتا رہا ہے، سارا دن گوشت بیچتا رہا ہے، بیٹا تھک گیا ہوگا، جا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے، جا تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں، جا تیرے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، جا بیوی کے پاس چلا جا، جا بیٹے کے پاس چلا جا، جا بیٹی کے پاس چلا جا، جا بیٹے آرام کر لے، پوری ماں کو یوں ہی پڑی رہنے دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اماں جان مجھے اپنی خدمت سے پورے طور پر آپ الگ مت کیجئے۔ اماں جان بچپن میں آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو میرے سروں میں تیل کی مالش کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ مجھے پورے طور پر درد سے بچانے کے لیے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ اماں جان مجھے اپنی خدمت کرنے دیجئے۔ جب بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس بوڑھی ماں کے ہاتھ آسمان کی طرف اچانک اٹھنے لگ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور نہ جانے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پتہ نہیں کون سی دعا کر رہی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے، یہ کیا دعا مانگ رہی ہے، یہ کون ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دباتا ہوں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں تب یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور میرے لیے ایک عجیب دعا مانگتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ ارے کہاں میں، کہاں موسیٰ، وہ وقت کا نبی ہے، میں ایک معمولی سا کسائی ہوں، میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے عرش اعظم پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جناب مفتی سلمان صاحب ماں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میرے نبی چھوٹے سے ہیں، بچپن میں چھوٹے سے ہیں، مکہ 6 سال کی عمر ہے، ابوا نامی بستی پہاڑی آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میمن ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اماں ہے۔ اچانک دل کا دورہ پڑا، مجھے یہ تو نہیں ملا دل کا دورہ پڑا کیا ہوا، تاریخی کتابوں کو بڑا میں نے کھنگالا کہ اللہ کے رسول کی اماں کو ہوا کیا تھا، بیماری کون سی ہوئی تھی۔ ابن عساکر پڑھ ڈالی، ابن شاہی ہشام پڑھ ڈالی، ابن سعد پڑھ ڈالی، البدایہ والنہایہ پڑھ ڈالی، لیکن تحقیق یہی یہاں تک ادھوری رہ گئی کہ اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا۔ بس ابن عساکر نے اور البدایہ نے اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ماں بولنا چاہتی تھی لیکن بولا نہیں جاتا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا حکیم ابو علی سینا نے
اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا اٹیک پڑتا ہے تو بولنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے نبی کی ماں پر دل کا دورہ پڑا تھا. وہ 6 سال کا معصوم سا بچہ, اب اماں کا انتقال ہو رہا ہے, اب وہ پہاڑی کے اوپر میرے نبی کی ماں گر گئی. بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں میں, بس محبت سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اماں گر گئی. جب سارا کا سارا دیا بجھنے کو ہوا, ساری طاقت اکٹھا کی اور میرے نبی جو 6 سال کے ہیں, اللہ کے رسول, ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی, اے میرے بیٹے اب میں دنیا سے جا رہی ہوں, شاید آج کے بعد تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اے میرے بیٹے, ہاں گھبرانا مت, پریشان نہ ہونا, ان قریب میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ رب ذوالجلال تیرا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا. یہ چند کلمات کہہ کے میرے نبی کی والدہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. کس نے قبر بنائی پہاڑی کے اوپر, کس نے دفن کیا پہاڑی کے اوپر, کس نے جنازہ اتارا پہاڑی کے اوپر, مجھے کہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملا. پتہ نہیں اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا. اب وہ بستی تو وہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے دوری پر ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسافر آیا ہو یا جبریل امین کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے میرے نبی کی والدہ کی لاش کو دفن کروا دیا ہو. واللہ عالم, یہ میرا گمان ہے, وہم ہے, یہ میری پورے طور پر کوئی تحقیق نہیں ہے. میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگالی ہے لیکن اس مسئلے میں میری تحقیق ادھوری رہ گئی. میں عرض کر رہا, میں آگے کی سنو. وہ میمن فرماتی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. میں دوسری طرف جب گئی اور واپس آئی ہوں تو مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا. میں تلاش کرتے کرتے پھر سے اسی پہاڑی پر گئی تو میں نے کیا دیکھا, وہ 6 سال کا معصوم سا میرا بیٹا محمد اپنی اماں کی قبر سے ہی چپٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اے امی جان تم جانتی تھی. نوجوانوں سنو, ماں کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے. فرمایا میرے نبی 6 سال کے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اماں تم جانتی تھی تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, تم ہی میرا سب کچھ ہے. ابا تو پہلے ہی جا چکے ہیں, دادا بھی کوئی نہیں ہے, چچا بھی کوئی نہیں ہے. اے ماں تمہیں میری بہن بھی کوئی نہیں, میرا بھائی بھی کوئی نہیں. ابا کی شفقت تمہیں سے ملتی تھی, بہنوں کا پیار بھی تمہیں سے ملتا تھا. ماں کی ممتا بھی تمہیں سے ملتی تھی. اماں جان مکے کی گلیوں میں جب میں گرتا تھا آپ مجھے میری چوٹ پر مرہم لگایا کرتی تھی. مکہ کی گلیوں میں جب میں کھیلتا تھا میرے کپڑے گندے ہو جاتے تھے, آپ میرے کپڑوں کو صاف کیا کرتی تھی. امی جان آپ مجھے نہلایا دھلایا کرتی تھی. اب مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اور میمن پیچھے سے آئی ہیں, کندھا پکڑ کے اٹھا رہی ہیں, بڑی مشکل سے میرے نبی کو اٹھا کے لائے. یہ تو بچپن کے حالات ہیں. اب بچپن کے سنو, حجۃ الوداع کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سن 9 ہجری میں تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. اللہ کے رسول جب حج کے لیے تشریف لے گئے, تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. سب ابوا بستی جب آئی سارے صحابہ کو روک دیا. تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں, حضرت انس کی روایت کے مطابق 19 بال سفید ہو چکے ہیں. یہ وقت کا بوڑھا نبی پہنچ گیا ہے ابوا پہاڑی پر اپنی اماں کی قبر پر, اور ایک معصوم کے بچے کی طریقے سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر ففک کے رویا ہے. پیچھے سے سیدنا ابو بکر صدیق گئے ہیں, سیدنا فاروق اعظم گئے ہیں, علی مرتضی گئے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں. میرے نبی کہنے لگے ابو بکر یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. ہاں آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اے بنگال کے اچھے لوگوں, اے ہندوستان کے نوجوانوں, 55 سال کے بعد وقت کے 61-63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے, ماں کو کبھی بھلایا نہیں جاتا, والدوں کو کبھی بھلایا نہیں جاتا. ہاں تم تو یہاں ابا کے انتقال کے بعد ان کے قبروں کے نشان بھی بھول جایا کرتے ہو. میرے نبی تو فرماتے ہیں ماں کو کبھی بھلایا نہ کرو. ہاں عالم شباب میں میرے نبی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. ماں کی خدمت کرو, والدوں کی خدمت کرو, علماء کی خدمت کرو. ہاں مدارس کو مضبوط کرو. اپنی اماں اگر ماں روٹھی ہوئی ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تم لاکھ روزے رکھو, لاکھ تراویح سنو, لاکھ پورے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرو. اس بیٹے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی نہیں
जिसके वालिदैन उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। अगर रमजान अच्छा बन करना चाहते हो, रमजान अच्छा करना चाहते हो तो माओ की खिदमत करो। और यहाँ जलसे से उठ करके जाना, अपनी अम्मा के पैर पकड़ लेना, अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर देखिए आपने मुझे माफ ना किया, मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरे सदका खैरात रोक लिए जाएंगे, अच्छे मामलात अच्छे अखलाक रोक लिए जाएंगे। अपनी माँ की खुशामद करना, वालिदों की खुशामद करना, माँ को मनाओगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपनी माँ को मनाएंगे, अपनी माँ को मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे। हाँ, दूसरा अपनी बहनों की खबरगिरी करेंगे, बहनों की खबरगिरी करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की भी हम खबरगिरी नहीं करते। एक बहन का मेरे पास फोन आया, मौलाना रोने लगी, कह लगी हजरत जी मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, जिस दिन से अब्बा का इंतकाल हो गया भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, फोन करती हूँ भाई फोन काट देते हैं कि बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भैया से कह दीजिए मुझे भाइयों की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तो भैया के प्यार की जरूरत है। बहना तुम्हें बहुत याद करती है। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने दिल में महसूस ये किया है बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। आए उम्मत के नौजवानों, बहुत कसीर तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं। मैं इन सब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर तुम पूरे तौर पर हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में 1 मरतबा फोन करके खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। बाजी साहिबा आप कैसी हैं? अब्बी जान आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ईद का मौका आता है, अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। कम से कम 500 का सूट अपनी बहन को भी दिला दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरा भाई लाया है, देखो ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल रखता है। हाँ हाँ, कभी कभी अपने भांजों को, नन्हे भांजों को, बहन के बेटे को 100-150 के शूज दिला दिया करो, खिलौने दिला दिया करो। अपने बच्चों को हजारों देते हो, अपने बच्चों पर हजारों खर्च करते हो, कभी कभी अपनी बहनों के बेटों को भी दे दिया करो। आपका बेटा आपके 10,000 के गिफ्ट पाने के बाद भी 1 मरतबा आपको थैंक्स नहीं कहता, लेकिन आप अपने भांजे को अगर 200 रुपए के खिलौने देंगे तो वो आपके पीछे पीछे फिरता फिरेगा। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है उस दिन बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। जानते हैं क्यों? कि आज अब्बा का जनाजा उठ गया, इस घर से मेरा रिश्ता टूट गया। अपनी बहनों को नाकहार कहने दिया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी अपनी बहनों को मैके लेने पहुंच जाया करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है। हाँ हाँ, बचपन में हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन में एक आंगन में पले बढ़े हैं, एक माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ, मुझे याद है अब्बा जान हम छोटे छोटे थे, अब्बा जान बाजार से कोई खाने की चीज लाते थे, बहना मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, लेकिन तू अपने हिस्से से मुझे, अपने हिस्से से भी पूरे तौर पर मुझे हिस्सा दे दिया करती थी। अरे बहना मुझे याद है हम सब बचपन में एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाया करते थे। कभी कभी अपनी बहनों के पास बैठ लिया करो, कभी कभी अपनी बहनों के पास 10 मिनट निकाल लिया करो। बूढ़ी बहन हो गई तो क्या हुआ, कभी कभी उसके हाथ पकड़ लिया करो। बहना तो मेरी वही बहना है ना जो इन हाथों से मुझे खिलाया करती थी, जो इन हाथों से मेरे सर में तेल लगाया करती थी, जो इन हाथों से पूरे तौर पर मेरे बदन को छुआ करती थी। बहना मुझे याद है मैं
ہوتا تھا, جب میرے سر میں درد ہوتا تھا تو گھنٹوں میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی. بہنا مجھے یاد ہے جب میں اسکول پڑھنے جاتا تھا کوئی بچہ مجھے چھیڑ دیتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی. اے بہنا اب تو بوڑھی ہوئی تو کیا ہوا, تیرا بھائی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا. کہیں گے انشاءاللہ, بہنوں کی خبر گیری کریں گے انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا اگر اپنے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, ان کی تربیت کرے, پڑھائے لکھائے, اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے, اور شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کی خبر گیری کرتا رہے, ان پر خرچ کرتا رہے, اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کا فرمان ہے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. بیٹیوں کی عزت کرو, بہنوں کی عزت کرو, ماؤں کی عزت کرو, یتیموں کی مدد کرو, کمزوروں کی مدد کرو, ضعیفوں کی مدد کرو. ان مدرسوں میں کبھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو. تم تو اپنے بچوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ بکرے کا گوشت کھلاتے ہو, مٹن کھلاتے ہو, کبھی ان مدرسوں میں بھی دیکھ لیا کرو. یہاں پورے طور پر ٹھیک سے دال بھی نہیں ملتی, ٹھیک سے چاول بھی نہیں ملتی. ان علماء کی خبر گیری کیا کرو, ان کے کپڑوں کا انتظام کیا کرو, ان کو خوب ہدیہ دیا کرو, یہی تمہارے کام آئے گا. ان کی ضروریات تم پوری کرو, انشاءاللہ یہ رات کے تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے. اللہ تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا, تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا. یا برمخی ایک بادشاہ گزرا ہے, مالک سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یا مالک بن دینار, ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے. ایک اللہ والے کو ہر مہینے 1000 اشرفیہ دیا کرتا تھا, ہر مہینے 1000 اشرفیہ فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں. جب پورے طور پر یحییٰ برمخی کا انتقال ہوا, جب تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے, کیا گزری تم پر. یحییٰ کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی. جو میں 1000 اس اللہ والے کو دیتا تھا اور 1000 اشرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرتا تھا, اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں, کمزوروں کی مدد کریں. میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو, کمزوروں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, افطاری کے وقت تمہارے دسترخوان پر اگر 20 قسم کی نعمتیں ہو, پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو کہیں کوئی یتیم بچہ لاچار تو نہیں پڑا ہوا ہے, کہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہو. ہاں تمہارے لیے وہ سحری اور افطاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی سے پورے طور پر روزہ افطار کر رہا ہے اور تم قورمے اور کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہو. اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ غمخواری کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے. عید کا مہینہ, اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے. اب میں آپ سے اپیل کروں گا, آپ اپنے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ, 20,000 کا جوڑا بنواؤ, اپنے بچے کو 10,000 کے گفٹ دلاؤ, لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو اگر کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی کمزور ہے, اس کو بھی 100-200 کے کپڑے ہدیہ کر دو. اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عید کا دن ہے, میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں, تمام بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, آنکھوں میں کاجل نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, میرے نبی اس کے قریب گئے, بیٹا عید کا دن ہے, تو خوشی نہیں منا رہا, سارے بچے کھیل رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ, ان کے ابا موجود ہیں, میرے ابا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ان کی اماں موجود ہیں, میری اماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں. حضرت جی میں یتیم ہوں, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, چپلیں نہیں ہیں, میرے کو مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے. میرے نبی رونے لگ گئے, کہا بیٹے رویا نہیں کرتے, تو بھی یتیم ہے, تیرا
मेरा नबी भी यतीम है। बेटा क्या तू ये पसंद करता है कि मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले? सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले और मोहम्मद तेरा बाप बन जाए। फरमाया या रसूलल्लाह फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा बेटा, आज से मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया है। मेरे नबी वापस लाए उस बच्चे को अपने घर में। अम्मा आयशा को आवाज दी, हुमैरा लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया आयशा देखो इसके अम्मी नहीं है, मेरे भी अम्मी नहीं है, इसके भी अब्बू नहीं है, मेरे भी अब्बू नहीं है, ये भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ। आयशा मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसे अपना बेटा बना लो। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का घराना है। मेरे नबी अम्मा आयशा ने फरमाया उस बेटे के सर पर हाथ फेरा, कहा आए बेटे अगर मोहम्मद आज से तेरा बाप हो चुका है तो आज से आयशा तेरी माँ बन गई है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जाओ इस बच्चे को नहलाओ धुलाओ, आंखों में काजल लगाओ। अम्मा आयशा ने इस बच्चे को नहलाया धुलाया, आंखों में काजल लगाया, सर के बालों में तेल डाला। जब बच्चा तैयार हो गया मेरे नबी ने अपनी चादर को दो टुकड़ों में फाड़ा, एक यूं तहबंद की तरीके से लपेट दिया, दूसरा यूं कंधे से नीचे डाल दिया। वो बच्चा साथ साथ मेरे नबी के चलने लगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे आज तू पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है, मुझे उम्मत को ज़ईफों का मकाम बताना है, कमजोरों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। अल्लाहु अकबर कहिए, आज तेरी सवारी मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। और मेरे नबी ने उस यतीम बच्चे को अपने मुबारक कंधों पर सवार किया और उसी गली से निकले हैं जिस गली से वो बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा अरे जिसको हम यतीम समझते थे, गरीब समझते थे, कमजोर समझते थे, मैला कुचैला समझते थे, उसको हम अपने पास खिलाते नहीं थे, वो नबी के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा अरे मेरे भाइयों तुम मुझे यतीम समझते थे ना, गरीब समझते थे ना, अब मैं गरीब नहीं हूँ, देखो अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मैं नबी का बेटा बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, अब नबी ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अब अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। हाँ हाँ देखो मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल लगाया अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल डाला अम्मा आयशा ने है, देखो कपड़ा चादर पहनी मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तारीख इब्ने असाकिर में है, अल बिदाया वन निहाया है, तारीख इब्ने साद में इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैहि ने 1211 साल पहले लिखा। मक्के के मदीने के वो बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे काश काश हम भी यतीम होते, काश हमारे भी अब्बा ना होते, काश हमारे भी अम्मा ना होती, काश मैं भी यतीम होता, हमको भी नबी अपना बेटा बनाते, हमको भी अम्मा आयशा अपना बेटा बनाती, आए काश मुझको पूरे तौर पर अम्मा आयशा कपड़ा पहनाती, आंखों में काजल अम्मा आयशा डालती, तेल बालों में अम्मा आयशा लगाती, काश मैं भी यतीम होता, काश मेरे भी अब्बा ना होते, काश मेरे भी अम्मा ना होती। हाँ हाँ उस पर जब वो बच्चा चलने लगा मेरे नबी ईदगाह तशरीफ लाए, तवज्जो मेरे नबी ईदगाह तशरीफ लाए, वो बच्चा बैठने लगा। मेरे नबी ने फरमाया तो आए मेरे बेटे आज तो जमीन में नीचे नहीं बैठेगा, फर्श पे नहीं बैठेगा, बल्कि मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मिंबर पर करीब में बैठेगा, मिंबर पे करीब में बैठेगा, मिंबर पर करीब में बैठेगा। मेरे नबी ने मिंबर पर अपने बच्चे को मिंबर पे अपने करीब में बिठाया और ऐलान किया ऐ लोगो उलिदा यतीमन व माता मिस्कीना, ऐ लोगो जो अपनी खुशी में यतीमों को शामिल करेगा, जो अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करेगा, जो अपनी खुशी में कमजोरों को शामिल करेगा, जो गरीबों और यतीमों को ईद के मौके पर अपनी खुशी के मौके पर शामिल करेगा, उसके सर पर शफकत से हाथ रख देगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमा देगा और उस शख्स का महल जन्नत में मेरे महल के साथ बना देगा। सुभान अल्लाह। जनाब मुफ्ती सलमान साहब नारे तकबीर। करेंगे इंशाल्लाह यतीमों की मदद, इंशाल्लाह यतीमों की मदद करेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, उलमा की खिदमत करेंगे, मदारिस की खिदमत करेंगे। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इस्तकबाल के लिए आप सब तैयार हैं?
روزے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے جتنی گرمی ہو روزے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے جتنی آفت آئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ابو داؤد شریف میں علماء سے معلوم کیا 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے تراویح کے ایک سجدے پر اور سجدے کتنے ہوتے ہیں بھائی کتنی رکعت تراویح ہے 20 کو 2 سے ملٹیپلائی کیجئے کتنا ہو گئے 20 دونا 40 تو 40 کو 15 سے ضرب دے دیے کتنا ہو گیا 60,000 ایک دن کی تراویح پر 60,000 نیکیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی ہماری بہنوں کو بھی ملے گا بھائیوں کو بھی ملے گا 60,000 نیکیاں جنت میں ایک محل اور محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا اس دروازہ سن لیجئے اگر اس کے دروازے کے اس پلے سے اس پلے تک جانا چاہیں تو 60 سال لگ جائیں گے آپ کو جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیں یہ صرف تراویح کے ایک سجدے پر مل رہا ہے فرمایا افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرو آج مسلمان پریشان ہے رمضان گرمی میں آ گیا روزے کیسے رکھیں 16-17 گھنٹے پیاس میں مر جائیں گے آج میں تم کو بتاؤں صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو لڑی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ادھر 1000 کا لشکری جرار ادھر 313 صحابہ کرام ان کے پاس تیر نہیں ہے تلوار نہیں ہے خنجر نہیں ہے بھالے نہیں ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زیرہ 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے کس کے بھروسے لڑ رہے ہو تو کہنے لگے نہ مجھ کو تیر پر تلوار خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر سبحان اللہ ہاں یہ وہی جنگ ہے بس 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں حق مولا بھی تشریف لائے میں آپ کو پس منظر تھوڑا بتانا چاہتا ہوں اور ایک ذہن میں بات اور برکت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں یہ وہی جنگ ہے یہ وہی جنگ بدر ہے جس میں رب ذوالجلال نے فتح و نصرت سے مدد فرمائی تھی یہ وہی جنگ ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں جس جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی نبوت کو اللہ کی عدالت میں جھکا دیا تھا اور میرا نبی بہت رویا تھا اور دعا مانگی تھی اب آپ لطف اندوز ہوتے چلے جائیے میرے نبی کی پیڑھی آتی چلی جائے گی آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا میری گاڑی میں پیٹرول پڑتا چلا جائے گا پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا میرے نبی رونے لگ گئے اور کیا کہنے لگے میدان بدر ہے 17 رمضان المبارک ہے بھوکے پیاسے صحابہ کرام ہیں بھوکے پیاسے صحابہ کرام ہیں نبی کی پیشانی جھکی ہوئی ہے میدان بدر میں پیشانی رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اے مالک کائنات اے خالق کائنات اے مالک ارض و سماوات اے رب السماوات اے محمود الصفات اے مجھ کو پیدا کرنے والے میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے ان کے والد قصی کو پیدا کرنے والے ان کے والد کلاب کو پیدا کرنے والے ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے نام ہیں ان پر سبحان اللہ کہتے رہیے ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد کعب کو پیدا کرنے والے ان کے والد لوئی کو پیدا کرنے والے ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے ان کے والد غالب کو پیدا کرنے والے ان کے والد نظر کو پیدا کرنے والے ان کے والد نوار کو پیدا کرنے والے ان کے والد مواد کو پیدا کرنے والے ان کے والد عدنان کو پیدا کرنے والے ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے ان کے والد بوس کو پیدا کرنے والے ان کے والد اموال کو پیدا کرنے والے ان کے والد ابئی کو پیدا کرنے والے ان کے والد دعا کو پیدا کرنے والے ان کے والد سمر کو پیدا کرنے والے ان کے والد یحزن کو پیدا کرنے والے ان کے والد یلحن کو پیدا کرنے والے ان کے والد علاوہ کو پیدا کرنے والے ان کے والد اقنات کو پیدا کرنے والے ان کے والد جیشان کو پیدا کرنے والے ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے ان کے والد ناحس کو پیدا کرنے والے ان کے والد زارح کو پیدا کرنے والے ان کے والد سمی کو پیدا کرنے والے ان کے والد مرضی کو پیدا کرنے والے ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے ان کے والد ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنے والے ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے ان کے والد ناہور کو پیدا کرنے والے ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے ان کے والد رعود کو پیدا کرنے والے ان کے والد فائد کو پیدا کرنے والے ان کے والد ارفقشاد کو پیدا کرنے والے ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے ان کے والد بطوشل کو پیدا کرنے والے ان کے والد یرید کو پیدا کرنے والے ان کے والد مدحلیل کو پیدا کرنے والے ان کے والد کینان کو پیدا کرنے والے ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے ان کے والد شیش کو پیدا کرنے والے اور رب ذوالجلال سیدنا
आशीष के वालिद मोहतरम सैयदना आदम शफी अल्लाह को पैदा करने वाले ऐ रब्बे जुल जलाल, ये मैं 313 सहाबा तेरी राह में कटवाने के लिए ले आया हूँ। अगर आज तूने इनकी फतह नुसरत से मदद नहीं की मैदान बद्र में, तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। नबी के मुबारक हलक से दुआ निकली, फलक पर पहुंची, उधर से आवाज आई रब्बे जुल जलाल की, जिब्रील क्या खड़े हो देखते हुए, जाओ बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, जाओ 3000 नूरानी फरिश्तों को ले जाओ और मेरे महबूब की मदद कर दो। सलमान साहेब आए दुनिया का कोई माई का लाल ज़बानी इश्क़ रसूल पेश करे आकर के, वाहिद ज़ात मेरे नबी मुकर्रम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नसब नामा हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिंदा जावेद है। 80 दादाओं के नाम मैंने भी आपको गिना के बताया। ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ की बैन दलील है। मेरे नबी ने इश्क़, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से इश्क़ किया, प्यार किया, क़यामत तक सबको महफूज कर दिया। मुसलमानों, तुम भी नबी पाक से इश्क़ करो, नबी से मोहब्बत करो, उनके तरीक़ों पर चलो। रमज़ान मुबारक आ रहा है, मुकम्मल रोजे रखने इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह रोजे भी रखेंगे, इंशाल्लाह तरावियाँ भी पढ़ेंगे। हमारी बहनें भी इरादा करें, वादा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे तौर पर मुकम्मल रोजे भी रखेंगी और पूरे तौर पर तरावियाँ भी पढ़ेंगी। नमाजों की पाबंदी करो, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करो। समाज में जितनी बुराइयां पनप रही हैं, चाहे वो जहेज की शक्ल में हो, जहेज जैसी लानत को खत्म करो। जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं, जहेज दीन का हिस्सा नहीं, जहेज ईमान का हिस्सा नहीं, जहेज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बगैर जहेज के शादियों का रवाज डालो। हाँ, अपनी बहन और बेटियों का खास ख्याल रखो। हमारे घर की शहजादियां बगैर जहेज की वजह से बैठी हुई हैं। अब्बा के पास 2 लाख रुपए नहीं है, अब्बा के पास 4 लाख रुपए नहीं है, घर की शहजादी बूढ़ी हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। क्या समाज आपको पूरे तौर पर माफ कर देगा? क्या अल्लाह आपको माफ कर देगा? हो मुसलमानों, याद रखना, अगर इस गलत रिवाज की वजह से कोई बहन गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे, आप भी होंगे। इसलिए जहेज जैसी लानत को खत्म करो, नमाजों की पाबंदी करो, तमाम के तमाम उलमा की इज्जत करो, एहतराम करो, मदारिस की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो, उलमाए कराम को इज्जत की निगाह से देखो, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र करो। अपने बच्चों को दीन के साथ दुनियावी तालीम भी दिलाओ, अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ, LLB कराओ, बैरिस्टर बनाओ, हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, मुहद्दिस और मुफस्सिर भी बनाओ। अपनी माओ से कहूंगा आप भी अब इसमें अपना रोल अदा करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में ये सब चीजें आती हैं। बेटा, जब घर के सारे लोग इकट्ठा हुआ करो, शाम को सब आपस में मशवरा किया करो। छोटे छोटे बच्चे हों, किसी से कलमे तैयब सुना करो, किसी से सूरह फातिहा सुना करो, किसी से सूरह इखलास सुना करो। बारी लगा दो छोटे बेटे की, आज तुम दुरूद शरीफ सुनाओगे, आज तुम सूरह फातिहा सुनाओगे, एक दीनी माहौल बन जाएगा। थोड़ी देर दीन का तज़किरा कर लिया करो, इल्मी हलकों में बैठ लिया करो, मोबाइलों के चक्करों में ज्यादा मत पड़ा करो। हाँ, पूरे तौर पर सबकी इज्जत की निगाह से देखो। बेटी की इज्जत करो, बहन की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद यहाँ से इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद जो जिंदगी होगी वो एक दाई की जिंदगी होगी, मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशआर से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी। आज से तय करो इंशाअल्लाहुल अजीज, आज के बाद हम मुसलमान नजर आएंगे। तबीयत में बशाशत नहीं, थकन के फिर बहुत ज्यादा एहसासात है, कल फिर सफर करना है। मेरे लिए भी दुआ फरमाए, मेरी बीमार वालिदा के लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन अगर हयात हैं, अल्लाह उनको खूब लंबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे। अल्लाह अगर आपके वालिदैन ये दोनों में से एक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शो मगफिरत फरमाए। मेरी वालिदा हयात है, वालिद नहीं है, वालिद दुनिया से चले गए। आप पूरे तौर पर मेरे वालिद की दुआ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने बड़ी कोशिशें की। नौजवानों, आखिर में आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, आप अपने बेटे
बेटे को सिर्फ अपना बेटा मत बनाइए। मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है मेरे वालिद ने 10 साल तक 17 साल तक मुझसे दुश्मनी की, मुझे घर नहीं आने दिया। मेरी हिम्मत नहीं थी तालीम अय्याम में अपने घर से बाहर आ सकूं। जब मैं घर आता था मैं रोने लगता था, हजरत अब्बू जान 2 दिन रुक लेने दीजिए। तो मेरे वालिद ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रख के एक दिन कहा था, यही नसीहत आप अपने बेटों को जाकर के करना। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेटा बनाना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें उम्मत का बेटा बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम सारी दुनिया के बेटे बन जाओ। आज मेरे वालिद की कुर्बानियों का सदका है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वरना मियां सलमान को कौन बंगाल का जानता था, कौन उड़ीसा का जानता था, कौन इंग्लैंड और बर्तानिया का जानता था, कौन बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का जानता था। आज दुनिया में लोग मियां सलमान को जो जानते हैं ये मेरे वालिद की कुर्बानियों का नतीजा है। हाँ, अगर मेरे वालिद ने कुर्बानियां न दी होती तो शायद पूरे तौर पर मैं इस काबिल न होता, अब शायद इस काबिल न होता। मैंने अपने एक वालिद को कुर्बान किया है। देखो हजारों वालिदों का प्यार देने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने अपने 3 भाई छोड़े हुए हैं, मुझे कितने भाई मिल गए हैं। मैंने अपनी 5 बहनें छोड़ी हुई हैं, मुझे कितनी बहनों की मोहब्बतें मिल रही हैं। मैंने अपना एक घर छोड़ा हुआ है, जहाँ जाता हूँ मुझे अपना घर मिल जाता है, जहाँ जाता हूँ मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते हैं। ये सिर्फ दीन की निस्बत है, कुरान की निस्बत है, उलमाए कराम की दुआओं का सदका है। आप भी अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बर्बाद न करें, बल्कि उनको दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दिलाएं। उन्हें सारे हिंदुस्तान का बेटा बना दें, उन्हें सारे हिंदुस्तान का बेटा बना दें। इंशाअल्लाह अजीज वो अपना भी नाम रोशन करेगा, आपका भी नाम रोशन करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को, हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए। कितने लोग इरादा करते हैं वो उलमाए कराम के हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, मदारिस को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, उलमा की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, इनकी जरूरियात पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, इनको दर दर का भिखारी नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी आपकी दुआओं की बरकत से उस फकीर को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फिर से हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहिया साहब अल कासमी, जनाबे जितने हमारे अरकान कमेटी के हैं, चाहे हमारे शफीक भाई हो या हमारे शहादत भाई मौलाना शहादत साहब हो या हमारे रफीक मुकर्रम इस जलसे के अव्वलीन दाई और जो हमारा भाई है छोटा भाई, अल्लाह ताला उस सबको अपनी शान के मुताबिक आज अता फरमाए। जितने यहाँ भाई आए हैं मेरे दिल से दुआ है अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमा ले, अल्लाह आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। आए करीम अल्लाह, जैसे हम यहाँ सब मोहब्बत के साथ इस पंडाल में बैठे हुए हैं, आए करीम अल्लाह ऐसे ही जन्नत में हम सबको भी एक दूसरे का साथी बना दे, एक दूसरे का साथ नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। लई तक तहलुल अयाम मरीरतुन व लई तक तरवा वल अनआम गदाबु व लई तल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब हमारे जनाब नौजवान मुफ्ती सलमान साहब